I thought I will have a live session where I will not be sharing anything. I will be taking your live queries, whatever the queries you have related to CUET 2024. The maximum question which I'm getting nowadays are two. I'm giving you the answer of these two questions in the very beginning. First, whenever you are filling a form, you are facing problem related to selection of college or course. I'm repeating, while filling the form, you are facing the problem related to particular course or a particular college, university. Maybe that you are not seeing the column of Delhi University or XYZ college. Please do not put any mind into that. You can leave that column. You need not to select the column or the course at this point in time. You can select, you cannot select. It will not have any effect in your admission. College and course can be selected at later stage when you will be applying for that particular course or college. I'm repeating, while filling the CUET form, you may fill college or course, or you may not fill college or course. It is totally optional to you. You have option. You want to fill, you can fill. You do not want to fill, you can leave it. Please do not waste your time. Your boards are going on. Put your best efforts to prepare for your next board examination. College and course can be selected at the time of applying for that particular university or college after CUET result. So please do not put your mind into selection of particular course or college. बार बार मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिख नहीं रही है, मैं कैसे फिल करूं, ये कॉलेज नहीं एंटर हो रहा है, कौन सा कॉलेज डालूं, कौन सा कोर्स डालूं। प्लीज आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करो, आप अपने सब्जेक्ट्स फिल करो और फॉर्म को सबमिट करो। प्लीज कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको उसका मौका दोबारा मिलेगा जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का या XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे। वहां पे आपको दोबारा मौका मिलेगा कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। अनदर थिंग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर CUET. It depends upon which course or which college you want to go. Subject selection is totally based on the course or the college you are preparing for. But अगर आपको यहाँ पे भी confusion है तो I am giving you very simple suggestion. At this point of time, fill one language, one journal test, and 4 domain subject. Try to keep these 4 subjects which you have studied in class 12th. I am repeating, one language, one journal test, and 4 domain subjects. Suppose a commerce बच्चा अगर है, इंग्लिश के साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन वॉटेवर। साइंस का बच्चा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और फिजिकल एजुकेशन जो भी है बच्चे के पास। आर्ट्स का बच्चा है तो वॉट एवर द 4 सब्जेक्ट्स यू हैव इन योर क्लास 12, दोज 4 सब्जेक्ट्स प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश और हिंदी, वॉट एवर द जनरल लैंग्वेज यू हैव, मे बी यू मे बी फ्रॉम साउथ इंडिया, तो वॉट एवर द लैंग्वेज यू हैव, प्लीज सेलेक्ट दीज 6 और अपना दिमाग छोड़ दो इस समय। यू विल बी एलिजिबल फॉर मैक्सिमम ऑफ द कोर्सेज, मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। So these 2 things, please remember. Subject selection, if you are facing problem, language, journal test plus 4 domain. If you are facing problem in college and course selection, please leave that column. Do not fill anything for that. Later stage में आपको मौका मिलेगा. Beyond this, if you are facing any problem, switch on your video, raise your hand. I will give you the permission to speak and I will take each and every question. Each and every question. I'm not going to give any presentation today. I have already recorded video for the presentation about everything of CUET 2024. But today's session is about your queries. So please do ask queries. जो भी मन में क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. Raise your hand, switch on your videos and ask your queries. If you do not have queries, then there is no need of having this type of session.
any one of you. Please do ask your queries. If there are teachers, they can ask the queries which their students are asking. If students have joined, they can ask their question. You have been given permission to switch on your video. Switch on your video. Raise your hand. I will give you the audio permission. नो क्वेरी, 2 क्वेरी में क्वेश्चन सॉल्व हो गए आप लोग के। मेरे पास बहुत फोन आ रहे थे आप लोग के। किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है? फिर मुझे बंद कर दें, हम कंप्लीट कर दें सेशन को। 10 मिनट का सेशन बस। It will be very difficult to reply on WhatsApp and all when you people are sending a lot of messages. I'm not replying. So please, if you have queries, please do ask. You can switch on your video and then raise your hand. Yes, Neha, Subhajit Kumar. Subhajit Kumar, I'm giving you permission. Excellent. Let me give you permission. Yes, Subhajit, please ask. सर माय क्वेरी इज कि सर लीगल स्टडीज के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा फॉर बीए एलएलबी इन सीयूईटी? Okay. Do you have legal studies in class 12th? नो सर। Okay. Are you preparing for BHU? जी सर, बीएचयू एंड I got एएलयू। मैं समझ गया था जब आपने, ठीक है। तो BHU have given this thing, another thing. If you even you do not have legal study in class 12, then also you can select that paper legal studies in domain and prepare after your board. 1-1.5 महीने आपके पास मिलेंगे. You can prepare for legal studies and sit for the paper और आपका अब BHU में एडमिशन हो जाएगा। वहां पे आपको 3 चीजें चाहिए, आपका लैंग्वेज, आपका जनरल टेस्ट और आपका लीगल स्टडीज फॉर दैट कोर्स। तो along with your domain, along with journal test, along with इंग्लिश और हिंदी whatever you have, लीगल स्टडी एक्स्ट्रा भर देना आप। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। मिस नेहा, आई एम गिविंग यू परमिशन टू अनम्यूट। यस मिस नेहा, प्लीज डू आस्क। नेहा जी, मैंने आपको परमिशन दिया है। नेहा, you can ask your question, please. In between, I am giving permission to Khushi Singh. Khushi Singh. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, बच्चा। Please do ask your question. सर जैसे आपने कहा डोमेन सब्जेक्ट 4 होने चाहिए, पर मेरे पास तो डोमेन सब्जेक्ट 3 ही है। आपके पास क्या क्या है? आप कौन से स्ट्रीम से हो, पहले आप मुझे बताओ। कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या है आपके पास? इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट और ठीक बिजनेस है, स्टडी। कोई दिक्कत नहीं। आप इंग्लिश भरो, हिंदी भरो और अपने तीनों डोमेन सब्जेक्ट भर दो। एक्चुअल में 4 में क्यों कहता हूं, पहले मैं बताऊं। रिक्वायर्ड आपको 3 ही है, सबको रिक्वायर्ड 3 से ज्यादा कहीं भी नहीं है। मैं 4 इसलिए कहता हूं कि अगर आपका किसी में नंबर कम आ गए तो बेस्ट 3 रखते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने 3 फिल किए हैं तो 3 के मार्क्स लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने 4 फिल किए हैं तो जो बेस्ट 3 होंगे उसके मार्क्स लगेंगे। अब आपके पास तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपके पास 3 ही है, तो आप 3 भर देना। लेकिन मैं बाकी बच्चों को बता रहा हूं जिनके पास बिजनेस स्टडी के साथ फिजिकल एजुकेशन होता है, मैथ्स होता है, साइकोलॉजी होता है, वो बच्चे अगर 4 फिल करेंगे तो दे विल हैव एन एडवांटेज, कि अगर कोई पेपर खराब भी हुआ तो दे विल हैव दैट एडवांटेज। ठीक है खुशी, यू गॉट द आंसर? ठीक है ज्योत्सना जी, प्लीज, आई एम गिविंग यू राइट टू अनम्यूट। ज्योत्सना मैम, प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Sir, this is regarding filling the CUT form. यस मैम। Which all colleges have BTech in Delhi University? Can we do BTech from Delhi University? या they have started only last year, लेकिन मैं अभी आपसे कहूंगा प्लीज कॉलेज और कोर्स पे दिमाग ना लगाएं, बच्चों को बोलें ना भरें, छोड़ दें उसको। अभी फिलहाल केवल और केवल अपने सब्जेक्ट्स फिल करें, पर्सनल डिटेल फिल करें, फीस पेमेंट करें, काम खत्म। कॉलेज कोर्स सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको तब दोबारा मिलेगा जब DU का फॉर्म आएगा।
जब Okay, so हाँ, like it's not necessary even for नहीं any नहीं, university. बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है, एकदम लिखा हुआ है फॉर्म में। कॉलेज कोर्स सेलेक्ट आप अभी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ना करें वो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज करने में गलतियां होंगी तो दिक्कत होगी। अभी आपके पास पूरा ऑप्शन होगा, जब बच्चे बोर्ड से खाली हो जाएंगे उनके पास पूरा टाइम मिलेगा, रिसर्च करके उस समय फिर करेंगे, तब तक बच्चे और क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मुझे कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स करना है। Right, sir. Another question is ki like if we are leaving any column right now incomplete, like as you said, ki courses and colleges can be left for timing, so it won't become the basis for rejection of our नहीं नहीं, बिल्कुल application. नहीं मैम, आप फॉर्म में जाइए, फॉर्म के पेज नंबर अगर मैं सही हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्म में एकदम क्लियर लिखा हुआ है, लेट मी शो यू सो दैट कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर अगर आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन में तो आपको प्रॉपर मिलेगा सीयूईटी के। एक सेकंड, मैं आपको पहले तो CUET.NTA इस वेबसाइट को दिखाता हूँ। इस पे आपके पास क्लियर, यही मैंने आप लोगों से कहा, बार बार बच्चों से भी कहता हूँ कि ये पीजी का ओपन हो गया। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों को बताइए कि पढ़ें पढ़ें, अगर पढ़ देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि उनको ये चीज दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप डाउनलोड, सॉरी इन्होंने हटा दिया है या कुछ किया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप पढ़ेंगे, 90 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। कुछ रीजन होगा इसको हटाया हुआ है इस समय, फिलहाल के लिए देखिए पेज नहीं आ रहा। तो उसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है, कॉलेज और कोर्स को आप इस समय इग्नोर कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉलेज एंड कोर्स को आप इस समय इग्नोर कर सकते हैं। मेरे पास शायद डाउनलोड में पड़ा होगा, ये देखिए, हाँ मेरे पास है। मैं ओपन कर देता हूं आपके लिए। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैम आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ज्योत्सना मैम, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है ज्योत्सना मैम। Yes, sir. I am able to see your screen. ओके, लेट मी शो यू। सब बच्चों के लिए बेटर हो जाएगा कि इस समय आप कॉलेज एंड कोर्स को अगर आप नहीं भी सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको चल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये इसीलिए मैंने शुरू में ही रिप्लाई दिया था। लेकिन देखिए आपको Sir, anything particular which we have to take care while filling the form? बहुत सारी Because चीजें हैं, वो I तो have heard that आप लोग too को many forms were सब कुछ, rejected last year. कोई बात नहीं। मैं आपको पहले जिस क्वेश्चन को आपने पूछा मैं उसके जवाब दे देता हूँ, सो दैट कि बच्चों Right. देखिए देखिए फॉर एडमिशन इन सोसाइटी इतना द एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिगार्डिंग कोटा, ये तो कोटा के बारे में है। ऐसा ही एक बॉक्स है इसमें, हाँ, कॉलेज कॉलेज एंड कोर्सेज का। लेट मी शो यू दैट। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, वो हर बच्चे को पता होना चाहिए, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। क्योंकि मैंने तो इसको लाइन बाय लाइन 3 बार पढ़ लिया। तब तक कोई और क्वेश्चन है मैम तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। हाँ ये देखिए मैम, candidates who will be appearing for CUET UG 24 may participate in counseling admission process of any university institution organization even though they have not applied for that। आप देख रहे हैं आप, in the online application form of CUET 2020-24। उसी तरह also the university institution organization may admit any candidate who has appeared for CUET irrespective of the fact that the candidate has chosen that university institution organization online form or not। तो इसलिए आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है या नहीं किया है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ज्योत्सना मैम नाउ इट इज क्लियर। ज्योत्सना मैम, इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी sir, हाँ जी, right. थैंक यू मैम, थैंक यू। सौरभ बवेजा, you can ask your question please. I have given you right to unmute. Good morning, sir. Good morning.
सर मेरा एक डाउट था कि अगर सीयूईटी में सर जैसे कि टोटल 6 सब्जेक्ट। आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलो। हेलो। हाँ, दोबारा बोलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। श्रिया, श्रिया, यू कैन आस्क क्वेश्चन। श्रिया, I have given you option to unmute, Shriya. Shriya, am I audible to you? Those who have already asked can hands down so that के जिसने क्वेश्चन पूछ लिया है वो हैंड्स डाउन कर दे, सो दैट मुझे पहचानने में आसानी रहेगी। श्रिया, आई थिंक नेहा मैम का क्वेश्चन है, ले लिया। अगर दोबारा किसी का क्वेश्चन है तो हैंड्स अप रखेंगे, अगर अबाउट डाउन कर देंगे। खुशी, आपका क्वेश्चन ले लिया मैंने। खुशी, अनम्यूट करो। हाँ, आप फिर हैंड्स डाउन करो। पर एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो, बोलो। पर मुझे तो बीबीए करना है, और जहां तक मैंने अभी सर्च की तो बीबीए के लिए तो 3 लैंग्वेज, मतलब 3 सब्जेक्ट मांग रहे, एक लैंग्वेज, जर्नल और बीबीए, बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट। तो वो बेटा आईपी करने के यूनिवर्सिटी में है। मेरी बात सुनो, वो आईपी यूनिवर्सिटी में देखा होगा आपने। डीयू में बीबीए नहीं है, डीयू में जो कोर्स है वो बीबीए नहीं, उसको बीएफ आईए बोलते हैं और बीएमएस कहते हैं। उसके लिए मैथ्स चाहिए। क्या आपके पास मैथ्स है? खुशी, आपके पास मैथ्स है 12th में? खुशी, अनम्यूट करो। नहीं है। तो आप डीयू के एलिजिबल नहीं हो। डीयू का जो बीबीए है, बीबीए तो उसका नाम नहीं है, उसका नाम है बीएफ आईए और बीएमएस। उसके लिए आप नहीं, एलिजिबल नहीं हो। ट्यूब की यूनिवर्सिटी नहीं चाहती हूँ। हाँ, तो आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो आईपी यूनिवर्सिटी का एक अलग से फॉर्म सीईटी का आया हुआ है, वो फॉर्म फिल करो बच्चा। ठीक वो है। फॉर्म कहाँ से फिल? हाँ, सीईटी के वेबसाइट पे जाओ, आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहां से फिल करो उसको। वो ये फॉर्म नहीं है, ये सीईटी अलग फॉर्म है। ठीक है। सैमसंग प्लीज, आई एम गिविंग यू सैमसंग एसएम। सर मेरे को एक डाउट है। यस, मेरे को बीबीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने अभी तक क्लैट नहीं दिया है। ठीक है। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स विदाउट क्लैट मेरे को मिल सकता है? देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं बच्चा। आप जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो सारी क्लैट के थ्रू हैं। तो अगर आप यू आर, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई विल सजेस्ट कि आपको एनएलयू का प्रिपरेशन दोबारा से करना चाहिए और अगले साल एनएलयू देना चाहिए, क्लैट देना चाहिए। अदरवाइज यू कैन थिंक अबाउट बीएचयू। बीएचयू इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो आपका सीयूटी के थ्रू हो जाएगा। along with the BHU, BHU is a very सर good जो भी आप option. ऑप्शंस बताएंगे कॉलेजेस के, मेरे को विद इन दिल्ली ही बताइएगा, क्योंकि मैं बेटा दिल्ली आउटसाइड। आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दो, आईपी यूनिवर्सिटी से आप कर लोगे। सर आईपी यूनिवर्सिटी में तो क्लैट ले रहे हैं, पर वो बीबीए एलएलबी के हाँ, लिए क्लैट ले रहे हैं, लेकिन वो अपने से भी देते हैं, कुछ कॉलेजेस उनके। सीईटी। हाँ, वो अपने से भी देते हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। ठीक। पर सर जब मैंने बात करी थी अपने नोन में, तो उन्होंने मेरे को यही बताया है कि वो विदाउट क्लैट तो नहीं हो पाएगा नहीं बीबीए बेटा, एलएलबी। उनके उनके पास आईपी यूनिवर्सिटी में ना 2-3 तरह के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें मैनेजमेंट सीट भी होती हैं। वो सीयूटी से भी एडमिशन लेते हैं, वो सीईटी से भी एडमिशन लेते हैं, वो क्लैट से भी लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको देखना, वो बाद में बची हुई सीट पे रहेंगे, अभी फिलहाल नहीं ले रहे होंगे, इसलिए आपसे बात हुई होगी, लेकिन वो लेते हैं एडमिशन, डोंट वरी। सर आईटी के अलावा कोई और? दिल्ली में तो फिर कुछ बचता ही नहीं ऑप्शन, विद इन दिल्ली कोई ऑप्शन नहीं है। सिम्बोयसिस, क्राइस्ट? बेटा दिस इज नॉट इन दिल्ली, सिम्बोसिस क्राइस्ट आपको। सिम्बोयसिस सर नोएडा में भी है, हाँ, नोएडा और में है। क्राइस्ट गाजियाबाद में है, तो हाँ, वो भी हाँ, ऑप्शंस में अभी है। आपने मुझे बोला विद इन दिल्ली। अब सर दिल्ली एनसीआर तो उसके अंदर ही काउंट हो गया ना। अच्छा, तो आप भर सकते हो, बट दोज आर नॉट वेरी गुड कॉलेज, दीज आर द न्यू कैंपस, बहुत अच्छे नहीं है। अगर आपको सिम्बोसिस करना है तो इट इज पुणे इज गुड, एंड अगर आपको क्राइस्ट देखना है तो बैंगलोर इज गुड, बट नॉट ऑफ दैट दीज कैंपसेस विच आर सेट अप फ्यू ईयर्स बैक। और ठीक। सर डीयू में कोई ऑप्शंस नहीं है? नहीं बच्चे।
ठीक है, नमन अग्रवाल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। नमन अग्रवाल, आई हैव गिवन यू द राइट टू अनम्यूट। नमन, नहीं है। सौरभ, आई एम गिविंग यू अगेन, आई एम गिविंग यू द राइट। सौरभ, थैंक यू सर। सर वो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, वो सर नेटवर्क इश्यू होगा। कोई बात नहीं, आप जल्दी से क्वेश्चन पूछो, जल्दी यस से। सर। सर मैं ये कह रहा था कि सर सीयूटी में जैसे टॉप सर 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो सर मेरा ये डाउट था कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लीव करूं। सर जनरल टेस्ट कंपलसरी है सर सीयूटी? आपके पास कितने को सब्जेक्ट हैं अभी 12th में? सर मेरे पास एडिशनल को मिला के 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो 6 हैं, तो फिर आपको ड्रॉप क्यों करना है? सर क्योंकि उसमें शायद से मैंने देखा है ठीक है, अच्छा ये कि बताओ 6 कौन कौन से हैं? 6 कौन कौन से हैं? सर एक फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ठीक है, और आपको कोर्स क्या करना है? सर वैसे तो मेरा मोटिव है कि सर बीकॉम ऑनर्स करना है बीकॉम सर। ऑनर्स करना है, तो मैं आपसे हम्म, कहूंगा कि आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी में से जो आपको एक लगे वो ड्रॉप करके और जनरल ओके। टेस्ट ले लेना। आई एम रिपीटिंग, आप यस सर। मैथ्स और अकाउंट्स मत छोड़ो, बल्कि बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स हम्म, और फिजिकल एजुकेशन, इन तीनों में से एक ड्रॉप करके उसकी जगह जनरल टेस्ट ले लेना। ओके सर। जो जिसमें भी आपको लगे, टोटल 6 हो जाएंगे हाँ जी। आपके पास, क्योंकि अकाउंट्स हाँ और जी। मैथ्स दोनों कंसीडर होते हैं बीकॉम ऑनर्स में। तो अगर आपके हाँ जी। अकाउंट में मार्क्स कम आए तो मैथ्स देख लेंगे, मैथ्स में कम आए तो अकाउंट्स देख लेंगे, इसलिए अकाउंट्स और मैथ्स मत छोड़ना, इंग्लिश मत छोड़ना। ओके बाकी बच गए ओके सर। 3, इंग्लिश, सॉरी इको, बिजनेस स्टडी और फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कोई एक ड्रॉप करके जनरल टेस्ट लेना। ठीक है, ओके सर। सर वैसे थैंक यू। कितने की वो होता है क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि सर कितने मतलब टॉप देखते हैं वो, कितने मतलब सब्जेक्ट देखते हैं टॉप वो, मतलब बेटा सीयूटी आपको में? बीकॉम ऑनर्स में वो देखेंगे इंग्लिश हाँ प्लस जी। मैथ्स हाँ या जी। अकाउंट्स प्लस एनी 2। और ठीक, प्लस जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट नहीं देखेंगे, बीकॉम ऑनर्स में जनरल टेस्ट नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं बच्चा कि हाँ आप जी। बीकॉम ऑनर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं हुआ तो आपके ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। तो अगर आपने जनरल टेस्ट फेल किया हुआ है तो आप बीकॉम पास के एलिजिबल होगे, आप बहुत सारे कॉलेजेस में बीबीए के एलिजिबल होगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जनरल टेस्ट को मिस मत करना। वैसे जनरल टेस्ट आपके लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ओके सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट बिल्कुल, जो भी आपके ऑनर्स के कोर्सेस हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इन सब के लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है। मैं ओके सजेस्ट सर। इसलिए करता हूं कि अगर आपका, मान लो आप हिस्ट्री ऑनर्स के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, नहीं हुआ, यस सर। तो आप किसी पास कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। इसलिए कहता हूँ ओके। जनरल टेस्ट कर लो। ठीक है, ओके सर। यस सर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं अब क्वेश्चन लूंगा, प्लीज जिनके क्वेश्चन हो गए हैं हैंड्स डाउन कर लो, सो दैट कि इट विल बी फॉर मी। खुशी हैंड डाउन करिए, नेहा हैंड डाउन करिए, हर्षिता तिरानी प्लीज, हर्षिता तिरानी, Yes, sir. यस प्लीज। Sir, I have a question. Through the website of RU, I just search कि है ना उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि है ना वहाँ पे फॉर्म पैटर्न था, वो फिल करके मुझे कॉल आया और वहां से मुझे गाइडेंस ये मिली कि है ना आपको अगर फैशन डिजाइनिंग या फिर किसी भी चीज का डिजाइनिंग का डिप्लोमा करना है तो आपको पर्सनली वो कॉलेज अलॉट करना चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी हो गवर्नमेंट से हो। सो इज आप इट कौन राइट कौन टू सा फॉर्म चूज? भरा था आपने? राजस्थान यूनिवर्सिटी का गाइडेंस फॉर्म था, ऑनलाइन अच्छा, अवेलेबल ठीक है, था। मैं समझ गया। वो उन्होंने कोई काउंसलिंग वेबसाइट से उन्होंने टाई अप किया होगा, दैट इज नॉट गवर्नमेंट वेबसाइट से। कभी, मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज अगर आपको फोन करता है, कॉल करता है, तो समझ लो वो सही नहीं है ही नहीं वो सही। वो ओके सर। पक्का राजस्थान यूनिवर्सिटी ने किसी काउंसलिंग वेबसाइट से टाई अप किया होगा, वहां से आपके पास कॉल आया होगा। डू नॉट बिलीव ऑन ऑल दोस थिंग। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद सर्च करना पड़ेगा, तभी आप सही कॉलेज पे पहुंच पाओगे। नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू एंड टेल यू कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है और इसमें एडमिशन ले लो। प्लीज ओके रिमेंबर दिस इज योर वर्क, दिस इज योर लाइफ, योर मनी, योर टाइम, यू हैव टू डू एफर्ट फॉर दैट। ओके सर। सर ठीक है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना ज्यादा बेटर है या गवर्नमेंट बेटा, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, से? आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है? यस सर।
आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट मानो, अब तो निफ्ट तो निकल गया, FDDI नोट कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के कॉलेजेस हैं, FDDI, उनको सर्च करो, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, Okay, sir. बहुत Sir, सारे are you ब्रांच, Jaipur बहुत। National University? Is it right for jewelry designing or fashion designing? Yes, I'm telling you, please search FDDI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कॉलेजेस, उसमें आपको बहुत कोर्सेज मिलेंगे। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आएगी, यू कैन गिव मी अ कॉल और व्हाट्सएप, Okay, ठीक है? sir. थैंक यू। Yes, sir. अदर्स प्लीज हैंड्स डाउन, जिसका क्वेश्चन मैं ले चुका हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। माय हम्बल रिक्वेस्ट, ज्योत्सना मैम, तनिषा, हर्षिता, हैंड्स डाउन कर लीजिए। अगर आपके दोबारा क्वेश्चन होंगे तो मैं दोबारा आपको मौका दूंगा, अगेन हैंड्स डाउन का, जब हैंड्स अप का बोलूंगा तब आप लोग पूछेंगे सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में लेट मी आस्क विद अदर्स, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन कि किसको हमने एक बार भी टाइम नहीं दिया है। माय हम्बल रिक्वेस्ट, Tanisha, hands down. Naman, hands down. Sharleen, you can ask your question, please. Sharleen, you have been given right to unmute yourself. सर मेरे को जैसे आगे फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स में जाना है तो हम्म, उसके लिए मैं कौन से सब्जेक्ट्स लूँ लाइक मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट इतना नहीं है पर मैंने ली रखी है 11th 12th में अभी कोई फॉर बात नाउ। नहीं। आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं? हाँ जी कॉमर्स से हूँ मैं। कॉमर्स से हैं और आपको फाइनेंस में ही जाना है? फाइनेंस से इकोनॉमिक्स में जाना है मुझे। हाँ, तो देखो, दिल्ली में आप बिलोंग करते हैं? दिल्ली एनसीआर में ही आ जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको कोशिश करना है कि या तो देखो आपके लिए कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। आपके लिए बीकॉम हो सकता है, देन MBA कर सकते हो, आप CA कर सकते हो, आप उसके साथ BBA और फिर MBA कर सकते हो, या फिर इको ऑनर्स फिर MBA कर सकते हो। 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, बीकॉम करके MBA कर दो, BBA करके MBA करो फिनेंस में, इको ऑनर्स करके MBA करो, या CA करो। ये 4 में से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन। अगर मैथ्स कम पढ़ना है आपको तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि CA कर लो, बेस्ट ऑप्शन होगा कि CA के थ्रू जाओ, या बट हमें CMA के थ्रू जाओ। इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए मैथ्स होना जरूरी है क्या ऐसे एक कुछ? अच्छे कॉलेजेस में मैथ्स जरूरी है, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस अगर ढूंढोगे तो उसमें मैथ्स मांगते हैं। बहुत ओके सारे ऐसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कॉलेज हैं जो मैथ्स के बिना भी हो जाता है, नॉट इन DU में तो नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज नहीं है बच्चा, अल्टीमेटली फिर आप बहुत अच्छी जगह लैंड नहीं कर पाओगे। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा। अदम्या शर्मा, आई एम गिविंग यू राइट टू अनम्यूट। हो सकता है कि किसी और का क्वेश्चन सुन के आपको आंसर मिल जाए अपने क्वेश्चन का, तो प्लीज दूसरों के क्वेश्चन को सुने। अदम्या, प्लीज डू आस्क। सर एक्चुअली मैं भी BA इकोनॉमिक ऑनर्स एम कर रहा हूँ हम्म, एंड मैंने ऑलरेडी कर दिया है अप्लाई CUET के लिए। मैंने 6 सब्जेक्ट्स भरे, मैथ्स, इंग्लिश, BST, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड GT। ठीक है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इसी के थ्रू मेरा अगर मतलब मेरा भी फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है तो अगर CUET के थ्रू ही मैं BFI और BMS में जाना चाहूँ तो वो हो पाएगा? हो जाएगा। मैथ्स इंग्लिश जनरल टेस्ट भरा हुआ है आपने? यस यस सर। तो हो जाएगा, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, रैंकिंग में आते हैं तो हो जाएगा। उसके लिए BMS के लिए, BFIA के लिए जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका इंग्लिश, जनरल टेस्ट और मैथ्स। ठीक है, तो यू आर एलिजिबल, डोंट वरी। ओके सर। वर्दा जोशी, वर्दा जोशी, अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क योर क्वेश्चन। बेटर होगा कि अगर आप लोग वीडियो ऑन करके पूछेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा, पहचान पाऊंगा कौन है। वर्दा जोशी, प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं वर्दा का फादर बोल रहा हूँ। यस सर, प्लीज। और ये मेरे बेटे के लिए है सवाल। यस सर। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है उसके पास, एंटरप्रेन्योरशिप है और अकाउंट्स है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है और इंग्लिश है। ठीक है तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा सब्जेक्ट हमारे को CUET में डालना चाहिए सर? सर, आप चारों डालिए, कोई भी मिस मत करिएगा, चारों ये डालिए, साथ में आप इंग्लिश डालिए, साथ में जनरल टेस्ट डालिए। दैट इज विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इंग्लिश डालिए, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों डालिए और जनरल टेस्ट डालिए। दैट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये डालने के बाद आप लगभग लगभग हर कोर्स के लिए जो विदाउट मैथ्स वाले हैं आप एलिजिबल होंगे। ओके। ठीक है, वैसे लगेंगे आपके बेस्ट 3 ही, कई जगह पे बेस्ट 2 ही लगेंगे, जब इंग्लिश जनरल टेस्ट प्लस बेस्ट 2 ही लगेंगे, लेकिन मैं आपको चारों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा 4 पेपर देता है, कोई पेपर में 1 नंबर कम आता है, किसी में 1 नंबर ज्यादा आता है, उस 1 नंबर से ही बच्चे की रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए कहूंगा कि आप, बच्चे ने पढ़ा तो है ये 12th में, तो जा रहे हो चारों।
ठीक है। ठीक है सर। और इसमें सीयूईटी में सर रैंकिंग के बाद क्या प्रोसेस रहता है कॉलेजेस का? सर उसके बाद डीयू का फॉर्म निकलेगा, वहां पे आप फिलअप करेंगे तो रैंकिंग आएगी। अभी तो आपको सिंपली बच्चों को बोलिए बोर्ड की प्रिपरेशन करें। जैसे ही बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाता है उसके बाद सीयूटी का फॉर्म भरा हुआ, सीयूटी की प्रिपरेशन करें और अपना चुपचाप सीयूटी के रिजल्ट का इंतजार करें। उसके बाद कुछ नहीं करना उसको अभी फिलहाल। जब डीयू का फॉर्म आएगा तब सोचना है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रोसीजर चेंज हो रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है। इस बार वो क्या करेंगे लास्ट टाइम का मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चेंज होगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो जब तक डीयू का प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता आपको बिल्कुल उसके बारे में सोचना ही नहीं। नहीं तो डीयू का और इसका दोनों का अलग अलग प्रोसेस रहेगा, मतलब सीयूईटी भरने के बाद हाँ, डीयू का अलग सीयूईटी से एक भरना अलग पड़ेगा? फॉर्म है, सीयूईटी एक अलग फॉर्म है, डीयू का फॉर्म एक अलग आएगा, वो इसके बाद आएगा। ठीक अच्छा। है। डी और सीयूईटी इसमें भरने का नहीं से मतलब नहीं है कि आपने डीयू के लिए अप्लाई कर दिया। डीयू के एप्लीकेशन फॉर्म अलग से निकलेंगे, वो आपको बाद में फिर करना होगा। और वो जिसमें कब तक निकलेंगे सर? सर वो मुझे भी नहीं पता, जनरली आपके मई के लास्ट में या जून में आ जाते हैं। वो जब तक सर डेट जब तक ना आए हम कुछ नहीं कह सकते सर। ये उसी ओके। तरह है जैसे इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, किस डेट पे होंगे शायद ये इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी को नहीं पता होगा। ओके। थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। प्लीज जिसने क्वेश्चन पूछ लिया वो अपने हैंड्स डाउन कर लेगा, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन रह जाएगा। अगर दिव्या यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूँ। दिव्या, आई हैव गिवन यू द राइट टू अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा। सर वो मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो मैं सीयूटी में कौन कौन से सब्जेक्ट मैं लूँ? आपको बता रहा हूँ अभी, टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो अभी एक एनसीईटी का फॉर्म आएगा। जैसे सीयूटी का फॉर्म है ऐसा ही एक फॉर्म आता है एनसीईटी का, जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड या बीकॉम प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड होता है। वो बहुत अच्छा है। डीयू के भी कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ आईआईटीज हैं, कुछ एनआईटीज हैं, सब उससे एडमिशन लेते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सीयूटी भरो, यहाँ से बीए करके बाद में बीएड कर सकते हो, लेकिन बेटर ये होगा कि आप एनसीईटी का फॉर्म भरना, वो मिस मत करना। ठीक है। अभी फिलहाल आपके पास चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे ह्यूमैनिटीज है, प्रॉपर सीयूटी भर दो। जो कॉलेज मिल जाएगा वो देख लेना। नहीं होता तो आप एनसीईटी का फॉर्म अभी एक महीने के बाद करीब आ जाएगा, वो जरूर मिस मत करना बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वो नाम पढ़ पा रहा हूँ जिन लोगों को मैं ऑलरेडी पूछ चुके हैं। मोनिशा, अनम्यूट करो अपने आप को। मोनिशा अनम्यूट करो, आई हैव गिवन यू द राइट टू अनम्यूट। मोनिशा, you can ask your question. Mahi, you can ask your question please. Mahi. सर मेरे पास कॉमर्स हिंदी है, तो सीयूईटी के लिए मैं कौन से सब्जेक्ट्स पढूं? लाइक मैं किस चीज के लिए कौन से आपके कॉलेज पास के क्या लिए क्या एलिजिबल सब्जेक्ट्स हूँ? हैं, जल्दी से बताओ बच्चा, सब्जेक्ट क्या क्या हैं? सर हिंदी, इंग्लिश, बीएसटी, इको, अकाउंट्स। बस तो यही सारे भर दो, प्लस साथ में एक जनरल टेस्ट भर दो। सर सारे भरने हैं? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सपोज आपने हिंदी इंग्लिश दोनों भरा है, क्योंकि आपके पास दोनों है, कुछ बच्चों के पास तो एक ही है। आपने दोनों भरा है तो अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आएंगे तो हिंदी वाले लग जाएंगे, और हिंदी में कम आएंगे तो इंग्लिश वाले लग जाएंगे। सेम वे आपको चाहिए, आपको डोमेन में 3, लेकिन मैं आपको 4 कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो आपके पास 3 ही है, लेकिन जिन बच्चों के पास 4 है, इसलिए कि चाहिए तो 3, लेकिन अगर आपने 4 फिल किया है तो जो 3 बेस्ट होंगे वो मार्क्स लगेंगे। ठीक है। तो जिस बच्चे ने केवल इंग्लिश भरी है वो तो हिंदी पढ़ने, वो जिसने पढ़ी नहीं है हिंदी वो तो भर नहीं सकता, लेकिन आपने तो 2 साल पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए ना। हाँ सर। इसलिए आप दोनों भरो। ठीक है। सर ड्यू में हो जाएगा इससे? बेटा वो तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर ड्यू। ओके सर। बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, अकाउंट्स है तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो, और बीकॉम के लिए भी एलिजिबल हो, बीबीए के लिए भी एलिजिबल हो। मैथ्स नहीं है तो बीबीए तो आप हमारा ड्यू वाला नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी जगह से कर पाओगे, लेकिन इको ऑनर्स नहीं कर पाओगे बस आप ड्यू से। ठीक है। ओके सर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। रिया, अनम्यूट योर सेल्फ।
हेलो सर, मैं रिया का ब्रदर बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरी बहन को साइकोलॉजी के कोर्सेज करने हैं, तो उसके लिए कुछ क्या? नहीं, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए फॉर्म भरना है। देखो साइको का इंडिया में सबसे अच्छा कोर्स तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। LSR उसका बेस्ट कॉलेज है LSR। लेकिन वो कहाँ एडमिशन होगा वो डिपेंड करता है रैंकिंग के ऊपर। तो मैं आपसे कहूंगा साइकोलॉजी करने के लिए साइकोलॉजी को डोमेन में भरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो भरो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे के पास सब्जेक्ट हैं उसको बोलो भरेगी। साथ में एक लैंग्वेज भर पीसीबी है देगी। सर उसके पास। हाँ पीसीबी है तो बोलो अपना पीस पीसीबी को फिल करेगी, प्लस जनरल टेस्ट फिल कर देगी, प्लस इंग्लिश फिल कर देगी, सिविल भी एलिजिबल। वैसे जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ भरेगी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस प्राइवेट वाले जो हैं वो जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। DU में उसको 3 सब्जेक्ट चाहिए, प्लस एक लैंग्वेज चाहिए, सिविल भी एलिजिबल फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स। और वो 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, उसके लिए साइकोलॉजी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू बच्चा। थैंक यू। somebody with the name of M से है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मनप्रीत कौर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अगर मैं बीबीए का एंट्रेंस टेस्ट दूं CUET, हाँ बोलो। तो उसके बाद पंजाब या हरियाणा में कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा? बहुत सारे कॉलेज है बेटा। दिस सेशन इज रिलेटेड टू CUET में कैसे फॉर्म फिल करना है, उसकी कोई दिक्कत है। कॉलेज सिलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन रीजन वाइज, कोर्स वाइज, बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चा, वो हम इसमें नहीं कवर कर पाएंगे। अभी फिलहाल आपको CUET से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछो तो बेटर होगा, बाकी सबको हेल्प मिल जाएगी उसमें। आपको अगर नो कॉलेज से सर। रिलेटेड कोई डाउट है कि कौन सा कॉलेज फिल करें या कौन सा कोर्स, तो उसके रिलेटेड हम कोई और सेशन कर लेंगे या हम एक 1-to-1 बात कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। शिवानी and something. Shivani, unmute yourself. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपके 2 नाम हैं? नो सर, मेरी बहन भी मेरे साथ पढ़ती है तो इसीलिए। अच्छा बताओ। सर कॉमर्स के लिए कौन से ऐसे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है जिसमें हम सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो? आप कौन, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है पहले ये बताओ। इंग्लिश, मैथ, BST, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये 5 फिल कर देना जो आपके पास है, प्लस एक जनरल टेस्ट फिल कर देना। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आप हर कोर्स के लिए, हर कॉलेज के लिए एलिजिबल होगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास क्योंकि मैथ्स भी है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये 5 सब्जेक्ट जो आपके पास है ये फिल कर दो, प्लस एक जनरल फेस टेस्ट फिल कर दो, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द कोर्सेज, ऑल द कॉलेजेस। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा। मोनिशा, नहीं मोनिशा का क्वेश्चन मैं पहले ले चुका हूँ। मैं रानी, अगर मैं नहीं दिया हूं तो यू कैन शो मी थंब लाइक दिस और समथिंग, क्योंकि जिनके नाम मैं बार बार, जैसे नमन अग्रवाल, आई एम एज्यूमिंग कि मैं क्वेश्चन ले चुका हूं। अगर आपके दोबारा क्वेश्चन है तो यू हैव टू शो अनदर वे। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ गरिमा नाउ। गरिमा जी प्लीज, आई एम गिविंग यू राइट टू अनम्यूट, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। बोलो। सर मेरे को ये मतलब ये पूछना था, जैसे मेरे को BA LLB करना है या फिर BBA LLB जो भी मैं करूं, DU में क्लैट के थ्रू ही मिल सकता है, वो CUET के थ्रू नहीं मिलेगा, ठीक राइट? है। एंड मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, यू नो द सब्जेक्ट्स, एंड फिजिकल एजुकेशन है, मीन्स मेरे पास मैथ्स नहीं है, मैंने 5 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल। ठीक है। तो मतलब DU में तो मिलेगा नहीं सर। तो जैसे मतलब अगर हमको LLB करनी है, लाइक BA LLB करनी है, तो डोमेन में लीगल स्टडीज होना चाहिए अदर यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है। तो हाँ, तो जैसे अगर मैं, क्योंकि मेरे को BCom के कोर्स के लिए नहीं जाना, लाइक मेरे को कोर्स BA LLB ही करना है, तो मतलब मैं अगर अकाउंटेंसी हटा के फिजिकल एजुकेशन को डोमेन में डाल दूं, जैसे फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, एंड मेरे को लीगल स्टडीज भी लेना पड़ेगा और GT तो देना ही पड़ेगा, तो 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकता है? हो सकता है। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि आप सिंपली अभी अच्छा कॉलेज आपको कोई नहीं मिलेगा विदाउट क्लैट लॉ के लिए, अच्छा कॉलेज जिसे आप कहोगे। तो बेटर ये है कि आप अभी फिलहाल अपने BCom या BA के लिए अप्लाई करो। हो जाता है अच्छे कॉलेज में तो ठीक है, नहीं होता तो दिसंबर में दोबारा क्लैट होगा,
तब प्रिपेयर करना अगर आप अच्छे बच्चे हो तो, क्योंकि वो आपके वैसे भी अगर आप बीकॉम करके बीबीए करोगे तो 6 साल लग जाएंगे, या बीए करके, और वैसे आपके 5 साल में हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका 1 साल बीए करके जाना है और 1 साल प्रिपरेशन करके जाना है। तो मेरा सजेशन ये होगा, यू प्रिपेयर, यू गो फॉर बीकॉम और बीए। अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कंटिन्यू इट, देन डू, आफ्टर दैट गो फॉर एलएलबी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और समथिंग। नहीं होता तो अगली बार दिसंबर में दोबारा क्रेडिट देना, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। Okay, sir. Okay, thank you. Thank you. और now I am seeing whose question I have not taken. मेरे प्लीज नमन अग्रवाल का क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ कि नहीं ले चुका, प्लीज आप लोग को हैंड्स डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं बता पाऊंगा। प्लीज जिसके क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ वो प्लीज हैंड्स डाउन करेंगे। आई एम सीइंग नाउ, वीडियो ऑन करके जो करेगा तभी मैं समझ पाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे हैंड्स ऑन आए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप वीडियो ऑन करो, मैं समझ जाऊंगा आपके फेस देख के। हाँ, सौरभ बवेजा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बच्चा, आई एम गिविंग यू अनम्यूट। यस प्लीज डू आस्क। सर मेरा एक डाउट था कि अगर सर डीयू के अंदर मतलब सर कि अगर नहीं होता तो सर कोई और कोई आप यूनिवर्सिटी बता दो सर की कोई सर बेटा दिल्ली में यूनिवर्सिटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, एक दिल्ली इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी है, एक आपका आईपी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत अच्छे। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं? सर मैं दिल्ली एनसीआर से गुड़गांव से बिलोंग हाँ करता कोई हूँ। बात नहीं, आप गुड़गांव से बिलोंग करते हैं तो गुड़गांव में एक 51 में गुड़गांव यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एक आईपी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी है। ये मैं आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात बता रहा हूँ। जामिया हमदर्द एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। जेएनयू में अगर आपको लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह करने हैं तो जेएनयू एक अच्छा ऑप्शन है, डिपेंड करता है आपको कौन सा कोर्स करना है। सर वैसे तो मेरी प्रायोरिटी सर बीकॉम ऑनर्स की है, मतलब तो बीकॉम बीकॉम ऑनर्स ऑनर्स बीबीए तो ऑनर्स बेटर ये होगा कि बीए ऑनर्स। यू अप्लाई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन आईपी यूनिवर्सिटी। ओके सर। सर एक और डाउट था मेरा। हाँ बोलो। सर अगर जिसको सीए करनी है सर तो वो कैसे मतलब सीयूटी में कैसे कॉम्बिनेशन बढ़ सकते हैं सर, एक बार वो सीए बता का दो। सीए का सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है आपको। बेटर ये होगा कि सीए करना है तो साथ में बीकॉम ऑनर्स करो। बीकॉम ऑनर्स और सीए का ऑप्शन सब्जेक्ट्स जब लगभग मैच करते हैं तो आप बेटर रहेगा। ओके सर। तो सर उसमें भी फिर ये कर सकते हैं कि मैथ हटाकर उसके नंबर लग जाएंगे, अकाउंट या अकाउंट बेटा ऐसा सीए कुछ। सा सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है, सीए का अलग तरीका होता है, वहां सिंपल रजिस्ट्रेशन कराओगे आपका एडमिशन हो जी सर। जाता है, डोंट वरी। ओके सर। वहां पे ओके कोई सर, थैंक यू एंट्रेंस सर। नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, फाउंडेशन का एग्जाम बाद में देना होता है उसमें। नाउ ओके। वीडियो ऑन करिए तभी मैं पहचान पाऊंगा कि मैं किसका क्वेश्चन लूँ। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो ऑन करके तभी मैं क्वेश्चन दे पाऊंगा किसी का। नमन अग्रवाल, आई एम गिविंग यू द राइट, तभी मैं पहचान पाऊंगा कि मैं किसका क्वेश्चन लूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हैंड्स डाउन लोग नहीं है। नमन प्लीज डू आस्क द क्वेश्चन। सर मेरे को सीए विद बीकॉम करना है, तो मेरे को सीयूटी देना जरूरी है अगर मेरे को हाँ प्राइवेट कॉलेज बीकॉम, में? अगर अगर आपको बीकॉम करना है तो सीयूटी देना जरूरी है बेटा। देन जैसे कॉमर्स कॉलेज या फिर आरयू में एडमिशन चाहिए हो तो बीकॉम हाँ के तो लिए? साथ में आप सीए का फॉर्म भर देना और फिर सीए का फाउंडेशन एग्जाम देना। ठीक है, अगर वो हाँ हो जाता है तो आप चाहो तो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो बीकॉम। देन सर मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए बीकॉम? आप अपने सारे सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट को अप्लाई करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वो प्लस जनरल टेस्ट। वैसे जनरल टेस्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि डीयू में क्या एक ऑप्शन है कि बीकॉम में एडमिशन के लिए अगर आपका सब्जेक्ट के मार्क्स से नहीं होता तो एक बीकॉम में उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, लैंग्वेज +1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट से भी एडमिशन देते हैं वो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। विद इन कॉलेज जयपुर में ही चाहिए? जयपुर में चाहिए तो बेटर है कि आप अपने सब्जेक्ट्स प्लस जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज ये अप्लाई करो, बाकी सब आप सबके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द वीडियोस, वीडियो ऑन करेंगे तभी मैं आपको पहचान पाऊंगा, तभी मैं आपको अलाउ कर पाऊंगा। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, माही यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू द राइट। आपने वीडियो ऑन किया है माही। क्यों नहीं आ रहा, आप अनम्यूट करिए माही, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? करिए अनम्यूट बच्चा माही। अंजलि का अनम्यूट हो गया, अंजलि आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। अंजलि डू आस्क योर क्वेश्चन। अंजलि 4, अंजलि 4 नाम से कौन है? नहीं पूछना आपको? नो सर। ओके बच्चा। माही अब आप पूछो, माही अनम्यूट करो। सर मुझे ये पूछना था कि
मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो मेरे पास मैथ्स नहीं है, तो मैं यहाँ मतलब डीयू के अलावा और कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मैं बहुत जा सारी सकती यूनिवर्सिटीज हैं बेटा जो विदाउट मैथ्स भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कराती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी है वो कराती है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आप देख सकते हो। लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज जो अच्छे कॉलेज हैं वो विदाउट मैथ्स इको ऑनर्स नहीं कराते। तो अगर आप कर भी लोगे इको ऑनर्स विदाउट मैथ्स तो कोई फायदा नहीं होगा, केवल एक डिग्री हो जाएगी आपके पास, उससे कुछ दिल्ली में? होना नहीं है लाइफ में आगे। सर दिल्ली में है क्या कोई नहीं, दिल्ली इकोनॉमिक्स? दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो विदाउट मैथ्स आपको इको ऑनर्स कराती है। सर जयपुर में? जयपुर में है कुछ, लेकिन वही बहुत अच्छे वाले नहीं है बच्चा। प्लीज, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं कुछ, लेकिन अच्छे नहीं है। इको ऑनर्स अगर किसी को करना है, क्योंकि इको ऑनर्स में मैथ्स पूरा भरा पड़ा है। अगर आपको इको की डिग्री लेके कोई टीचर वीचर बनना है, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, वो सब अलग बात है, उसमें भी कोई जगह नहीं है। लेकिन अच्छे, अगर इको ऑनर्स के थ्रू आपको कहीं अच्छे फील्ड में जाना है तो बेटर ये होगा कि आप मैथ्स वाले बच्चे को ही इको ऑनर्स करना चाहिए। ओके सर। ठीक है। सोनिया। हाँ जी सर, लाइक मेरे को बीकॉम करनी है, विदाउट मैथ्स है मेरे पास में। तो ठीक सर है। प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों में से कौन से, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन से रहेंगे जिसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ? अभी प्राइवेट तो बेटा कभी भी जब भी पैसे दो कि जाओगे सब एडमिशन रहते हैं प्राइवेट कॉलेज में। आप कहाँ रहते हो? सर आई एम इन राजस्थान, बट मैं बाहर ही देख रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि राजस्थान में तो इतने अच्छे नहीं है कॉलेजेस। देखो, तो सर आपको पहले तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, आईपी हाँ यूनिवर्सिटी के वो लिए तो, बट अलग से लाइक। उसके बाद आप सिम्बोसिस के लिए अप्लाई करो, नरसिंह मुंजी के लिए अप्लाई करो, क्राइस्ट के लिए अप्लाई करो। ये 3 अच्छे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और सर रिपीट कर रहा जय हूँ। हिंद और मिठी बाई। उतने वो नहीं है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ। क्राइस्ट, हाँ जी नरसिंह सर। मुंजी और सिम्बोसिस, तो इनको सर देखो। उनके मिठू लिए भाई अच्छा भी, कॉलेज है, लेकिन उसमें एडमिशन बेटा सीट्स बहुत कम है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो सर उनके लिए भी मेरे को कोई एंट्रेंस टेस्ट देना हाँ, उनके पड़ेगा या उनके फिर? अलग से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अभी हम सीयूटी स्पेसिफिक रहे तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा बेटा। ओके सीयूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हम लोग, बिकॉज मैं चाहता हूँ एक के क्वेश्चन से दूसरों को आंसर मिले। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अलग से है तो वी कैन हैव अनदर सेशन, बट आज जो क्वेश्चन आप लोग पूछे प्लीज सीयूटी से रिलेटेड। सररीन, सररीन, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर आपने मुझे कहा कि बीए इकोनॉमिक्स कर लो एमबीए के साथ, तो मैं पूछ रही थी बीए इकोनॉमिक्स और बीएससी इकोनॉमिक्स में फर्क है और कौन सा बेटर है? बेटा कुछ यूनिवर्सिटीज बीए इकोनॉमिक्स देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज बीएससी इकोनॉमिक्स देती हैं, आपके ऊपर है। अगर आपके पास मैथ्स है, आपके पास मैथ्स है सररीन, अनम्यूट करो। हाँ सर, मैथ्स है मेरे हाँ तो पास। बस ठीक है, आप दोनों भर दो, जहाँ एडमिशन हो जाए। डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीएससी इकोनॉमिक्स से बेटर है। तो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी और किस कोर्स में जाते हैं। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। प्लीज अनम्यूट करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा किसका क्वेश्चन मुझे दोबारा लेना है, बिकॉज अब मैं हैंड्स ऑन से नहीं। हर्षिता तिरानी, प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. If you want to become a mimicry artist or anything which is related to stage, so आपको CUET देने का जरूरत है। बेटा जो आप जिस कोर्स की बात कर रहे हो, ये ना एक स्किल्स होते हैं। इसके लिए कोई कोर्स करके आपके अंदर ये स्किल कभी नहीं आता। ये सब बेकार की चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हम इससे इनसे आपको एक रास्ता मिलता है, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, उस कॉलेज में कोर्सेज होते हैं। लेकिन ये स्किल्स आपको बहुत सारे आपके एरिया में, जैसे अगर आप दिल्ली में आओगे तो कनॉट प्लेस के आसपास बहुत सारे ड्रामा एजेंसीज हैं जहाँ बच्चे जाते हैं। तो वो आप वहां पे जाके आप कर करके चीजें सीखते हैं। चीजें कोर्स से नहीं सीखी जाती। बहुत तो सारे सर है लोग ना, कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, सोचते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले लेंगे तो हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाएंगे। नहीं, वो जो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करता है, कोर्स करता है, कर करके सीखता है। आप केवल डिग्री देके ये चीजें नहीं सीख सकते। तो प्लीज मिमिक्री आर्टिस्ट, या आपको अगर जाना है रेडियो में, या अगर आपको जर्नलिज्म में, इन सब के लिए बेटर है कि कोई भी एक अच्छे कॉलेज जहाँ पे आपको एक रास्ता मिल जाए, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपके स्किल पे डिपेंड करता है। yes sir, but still सर है ना, अगर आप सजेस्ट करो कोई कॉलेज इन राजस्थान
फिर उसके लिए yes, फिर हमें अलग से बात करना पड़ेगा, बेटा दिस इज नॉट रिलेटेड टू सीयूईटी, तो बेटर हम सीयूईटी से रिलेटेड क्वेश्चन को रखें तो ज्यादा बेटर हो, ठीक है? okay, थैंक यू। क्योंकि आज हम सीयूईटी को वो करेंगे तो बात सब। ज्योत्सना मैम प्लीज, आप कुछ पूछना चाहते हैं शायद? Yes, sir. Sir, I would like to ask one thing, like a student of one stream can shift to another एकदम कर stream सकता है, courses? साइंस वाला कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज में, इवन ह्यूमैनिटीज वाला कॉमर्स में कर सकता है, बट साइंस में बच्चे नहीं कर सकते फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। Yeah, sir. So science student can go for BMS. एकदम जा सकते हैं, उसके लिए उनको मैथ्स के लिए मैथ्स होना चाहिए उनके पास, मैथ्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का फॉर्म भरेंगे, हो जाएगा उनका। Right, sir. Thank you so much, sir. And sir, one more thing, like if you want to go for honors courses, then that particular subject you have to fill for CUET. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप किसी भी ऑनर्स में जाने के लिए वो पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्ट भरना जरूरी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स में जाने के लिए हिस्ट्री का सीयूटी देना जरूरी नहीं है। साइकोलॉजी ऑनर्स में जाने के लिए साइकोलॉजी का सीयूटी देना जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। Okay. Thank you so much, sir. आई होप Thank you. मैम इस प्लेटफॉर्म से कुछ बेनिफिट हो रहा होगा बच्चों का। ज्योत्सना मैम, हाँ प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप हाँ बताएं। जी सर। हाँ, आप क्या बच्चों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म से? Definitely, sir. Definitely. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Even my son is appearing for this, so Okay, that's why I'm getting My- so many doubts cleared. My pleasure, ma'am. My pleasure. Kamya, you can ask your question, and this may be the last question. उसके बाद Kamya, please. हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। Good मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि कोर्सेज भरना मतलब अभी ज़रूरी नहीं है प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना, लेकिन इवन इफ हम भर भी दे तो वुड इट बी ट्रबलसम इन फ्यूचर? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन आपने कुछ भर दिए, कुछ नहीं भरे, बाद में दोबारा भर देना, दोबारा जब डीयू का फॉर्म आएगा वहां भर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपको जो समझ में आता है कुछ भी भरो। और बताओ। हाँ जी सर, और सर कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन जीटी सिलेबस? जीटी का सिलेबस मैं आप लोग को, अगर मेरे देखिए, मैं आपको स्क्रीन अगर मेरा शो होता है, लेट मी शो यू जीटी का सिलेबस मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे, और लेट मी शो यू द जीटी सिलेबस। वैसे मैं ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में आप लोग को बता चुका हूँ। क्या मेरी पीपीटी देख पा रहे हो आप? हाँ जी सर। ठीक है, लेट मी गो ऑन जीटी सिलेबस। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? नहीं आ रहा है, वेबसाइट आ रही है। अच्छा, लेट मी शो यू द जीटी सिलेबस। आप देख पा रहे हो? हाँ जी सर। देखो, ये 5 पार्ट के क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के, जनरल मेंटल एबिलिटी के, लॉजिकल रीजनिंग के, जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहली चीज तो 5 तरह के जनरल मैथमेटिक्स टिल क्लास 8 होती है, जिसमें नंबर सिस्टम आता है, एवरेज परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड वेजेस। ये मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से दोबारा देख सकते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के, एलसीएम के, एचसीएफ पे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम, क्यूब, डाइस, कोड, कैलेंडर, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज, सीक्वेंस और मिसलेनियस। जनरल टेस्ट में कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हिस्ट्री से होते हैं, कुछ इंडियन इकोनॉमी से होते हैं, जनरल टेस्ट से होते हैं, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ करंट अफेयर से होते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया काम्या। हाँ जी सर, लाइक मेरे करंट अफेयर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, नेवर कोई हैव बात बीन, नहीं, सो किसी सब बच्चे जैसे होते हैं, डोंट वरी, सब बच्चे आप जैसे हैं। किसी ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, सब बोर्ड के बाद पढ़ेंगे। अभी आप बोर्ड को प्रिपेयर करो, बोर्ड के पास जितना टाइम है उसमें आप 2 मैगजीन कोई भी ले लेना, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ले लेना, कंपटीशन मास्टर ले लेना, प्रतियोगिता दर्पण ले लेना, कोई भी 2 मैगजीन ले लेना जिसमें पूरे साल का समय सारणी दिया हो, पूरे साल का पूरा डेटा होता है, उसको एक बार पढ़ लेना। 100-150 पेज होते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छे रैंक चाहिए तो, हाँ लेकिन जी। हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वैसे टीओ कंसीडर करता है जीटी, एकदम मतलब मार्क्स उसके? एकदम करता है, एकदम करता है।
ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा जिसने भी ज्वाइन किया है, प्लीज जिस भी ग्रुप से आपको मेरा सेशन का फीडबैक लिंक मिला है, वहां पे फीडबैक जरूर लिखें। आपको और कौन सी क्वेरीज हैं, और भी हम सेशंस रख सकते हैं, अगर आप फीडबैक के नीचे लिखेंगे तो वी कैन कंटिन्यू विद मोर सेशंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉलेज, कोर्स, एरिया। लेकिन फीडबैक होगा तभी मैं प्लान कर पाऊंगा कि हाँ जी हमें ये प्लेटफॉर्म सही चल रहा है कि नहीं, आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, और मुझे नेक्स्ट सेशन किस बारे में रखना है। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पे ये वीडियो होगी लर्निंग विद डॉक्टर त्रिपाठी, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आपको डिफरेंट कॉलेजेस कोर्सेज से मिल सकते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।